हरिहराय नाम कृष्ण यादवाय नमो यादवाय माधवाय केशवाय नमो हराय नमः कृष्ण यादवाय नमो यादवाय माधवाय केशवाय गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधर गोपीनाथ गिरिधारी गोपीनाथ नमो गिरिधर गोपीनाथ गिरिधारी गोपीनाथ नमो श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत सीता नित्यानंद द्वैत सीता श्री चैतन्य नित्यानंद द्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट रघुनाथ जय गोसाई कोरी चरण वंदन जय गोसाई कोरी चरण वंदन जहाँ होते विघ्ननाश पूरा जहाँ होते विघ्ननाश पूरा जय गोसाई जर मोहि तारना जय गोसाई जर मोहि तारना पदरि पंचगा तेरा चरण से भी भक्त सनेवा तेरा चरण से भी भक्त सनेवा जन्म जन्म होए अभिलाष जन्म जय गोसाई जगे भजे कोई लावा जय गोसाई जगे भजे कोई लावा राधा कृष्ण नित्य लीला राधा कृष्ण नित्य लीला लीला प्रकार राधा कृष्ण नित्य लीला राधा कृष्ण नित्य लीला लीला प्रकार आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव भज हरियामा श्री गुरु वैष्णव
7, verse number 24. The son of Drona punished. Saeva Jivalokasya Maya Mohit Chetasah Vidhatse Svena Virena Shreyo Dharmadhilakshanam Saev Jivalokasya Maya Mohit Chetasah Vidhatse Svena Virena Shreyo Dharmadhilakshanam Saev Jivalokasya Maya Mohit Chetasah Vidhatse Svena Virena Shreyo Dharmadhilakshanam Saev Jivalokasya Maya Mohit Chetasah Vidhatse Svena Virena Shreyo Dharmadhilakshanam Saeva Jivalokasya Maya Mohit Chetasah Vidhatse Svena Virena Shreyo Dharmadhilakshanam Saev Jivalokasya Maya Mohit Chetasah Vidhatse Svena Virena Shreyo Dharmadhilakshanam Saev Jivalokasya Maya Mohit Chetasah Vidhatse Svena Virena Shreyo Dharmadhilakshanam Saev Jivalokasya Maya Mohit Chetasah Vidhatse Svena Virena Shreyo Dharmadhilakshanam Saev Jivalokasya Maya Mohit Chetasah Vidhatse Svena Virena Shreyo Dharmadhilakshanam Saev Jivalokasya Maya Mohit Chetasah Vidhatse Svena Virena Shreyo Dharmadhilakshanam Saha that transcendence Eva certainly Jivalokasya of the conditions living being Maya Mohit captivated by the illusory energy Chetasah by the heart Vidhatse execute Svena by your own Virena influence Shreya ultimate good Dharma Adi four principles of liberation Lakshanam characterized by Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. And yet, though you are beyond the purview
of the material energy. You execute the four principles of liberation characterized by religion and so on for the ultimate good of the conditioned soul. Purport. The personality of Godhead Sri Krishna, out of his causeless mercy, descends on the manifested world without being influenced by the material modes of nature. He is eternally beyond the material manifestations. He descends out of his causeless mercy only to reclaim the fallen souls who are captivated by the illusory energy. They are attacked by the material energy and they want to enjoy her without underfall pretext. Although, in a sense, the living entity is unable to enjoy, one is eternally the servitor of the Lord, and when he forgets this position, he thinks he is enjoying the material world, but factually, he is in illusion. The Lord descends to eradicate this false sense of enjoyment and thus reclaim conditioned souls back to Godhead. That is the all-merciful nature of the Lord for the fallen souls. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Sri Chaitanya Manubhishtam Sthapitam Yena Bhutala Swayam Rupaha Kada Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapadikam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Satvaitam Savadhutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishnavanvitamcha He Krishna Karuna Sindhu Deenbandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapte Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarujasya Kripa Sindhu Vevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Shri Krishna Chandra Bhagwan ki Shri Shri Radha Golok Bihari ji ki Srimad Bhagavatam Amal Puran की ताई गौर प्रेमानंद। तो हम लोगों ने कल सुना कि किस प्रकार से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और जब अर्जुन बहुत सारा प्रकाश देखे, जैसे बहुत सारे सूर्य एक साथ उसकी तरफ बढ़ते चले आए, तो इसका अर्थ है कि ताप भी बढ़ता चला जा रहा है। तो अर्जुन समझ नहीं पाए कि ये क्या है। यद्यपि वो बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्राह्मण पुत्र ब्रह्मास्त्र चला देंगे, क्योंकि जब ऐसे बड़े बड़े न्यूक्लियर बम चलाए जाते हैं तो इससे दूसरे जीवों को भी हानि पहुंचती है। तो इससे सारे देवलोक नष्ट हो सकते थे, पृथ्वी नष्ट हो सकती थी, दूसरे लोग नष्ट हो सकते थे। तो लेकिन बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने चला दिया अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। तब अर्जुन ने सीधे भगवान की शरण ली
तो अर्जुन, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अर्जुन डरे, लेकिन वो केवल अपने लिए नहीं डरे हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो पर दुखी दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे किसके विषय में सोच रहे हैं? अर्जुन यहाँ पे समस्त जीवों के लिए सोच रहे हैं, सारे जीवों के लिए सोच रहे हैं। इसलिए डर के उन्होंने भगवान की शरण ली, और भगवान की शरण लेकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। तो बहुत अच्छी स्तुति उन्होंने भगवान की है। तुमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायाविदस्तचिच्छक्त्या कैवल्ये स्थितात्मने स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्माभिलक्षणम्। अगर हम कभी किसी मुसीबत में फंस जाएं तो सबसे अच्छा तरीका है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान की प्रेयर करना, भगवान के प्रति प्रार्थनाएं करना। किसी भी मुसीबत में फंस जाएं तो प्रार्थना करना कि हे भगवान हमें बचा लीजिए। देखा जाता है कि भक्त को भगवान बचा लेते हैं थोड़ी सी प्रार्थना करने पर। अगर कोई श्लोक याद ना हो तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके या नरसिंह देव जी की प्रार्थना करके, है ना, अगर भगवान की इस तरह से प्रार्थना की जाती है तो भगवान बचा लेते हैं, हमेशा देखा जाता है। लेकिन भगवान वो नित्य मुक्त हैं और हम नित्य बद्ध हैं। जैसे ही हम बच जाते हैं मुसीबत से तो फिर हम गरीब कार्य करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें पहले बचाया है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारे मन में ये बातें याद रहती हैं कि हमने बुरे कर्म किए हैं, है ना, हे भगवान ये हमारे कर्मों का फल हमें प्राप्त हो रहा है, तो लेकिन इस बार हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम सावधान रहेंगे, है ना। हम मन में ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो हम लोग फिर भूल जाते हैं। लेकिन जो भी है, भगवान हमारे पिता हैं, भगवान फिर से हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। हम जितने बार मुसीबत में फंसे भगवान की प्रार्थना करें। ऐसा कहा गया है कि कभी आचार्य बताते हैं श्रीमद् भागवतम में कि कभी मनुष्य को कोई गलत कार्य करना भी पड़े, तो करना नहीं चाहिए, नहीं कि हम गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन चलो कभी किसी कारण पाप में प्रवेश करना पड़े तो भी मनुष्य भगवान को देखते हुए और भगवान का नाम जप करते हुए प्रवेश करे। क्यों? क्योंकि भगवान उससे निकाल लेंगे, उस पाप में भगवान प्रवेश होने नहीं देंगे, भगवान उस पाप के कारण हमें नष्ट नहीं होने देंगे, निकाल लेंगे। यह बात हमें पता चलती है कि जब ग्वाल बालों ने अघासुर के मुख में प्रवेश किया था तो वो नहीं जानते थे कि बहुत बड़ा सर्प है, एनाकोंडा बैठा है, वो नहीं जानते थे, है ना। वो कर गए प्रवेश, लेकिन जब प्रवेश कर गए तो वो ताली बजा रहे थे, भगवान का नाम जप रहे थे और भगवान की तरफ देख रहे थे। वो ये नहीं जानते थे कि क्या है, कह रहे थे कि हो सकता है ये जो रोड हमें दिखाई दे रही है सर्प की जीभ हो, ऊपर जो पर्वत है हो सकता है ये सर्प के दांत हैं, लेकिन ये सर्प के दांत नहीं है, ये पर्वत है। ऐसे बात करते करते उत्प्रेक्षा देखते देखते वो अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन भगवान को देखते देखते तो भगवान गए, बहुत तेजी से गए। वो जब प्रवेश कर गए भगवान से बचाना चाहते थे, रोकना चाहते थे, लेकिन तब तक वो अंदर प्रवेश कर गए। तो भगवान ने कुछ सोचा नहीं, भगवान अंदर चले दौड़ते हुए। देवता सब डर गए थे कि अब तो ये अघासुर भगवान को निकल लेगा और ये क्या होगा, तो हाहाकार मच गया। तो देवताओं में प्रेम भी है, भले आप जाने कि आपके परिवार के लोग कितने शक्तिशाली हैं, आपके ऊपर चल सकते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर चलेंगे तो आपको अरे ये क्या कर रहा है, अरे मत जाओ वो आ गए, चल जा। जबकि योग्यता का ज्ञान है लेकिन फिर भी डर रहता है अपनों के प्रति। तो वो सब जानते हैं भगवान की शक्ति को,
लेकिन उसके बाद भी भगवान से प्रेम है, इसीलिए देवता सब हाहाकार मचाने लगे कि अरे ये क्या हो गया, भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए, अब क्या होगा। तो लेकिन भगवान गए और भगवान सबको बचा लिया। तो हम ये बताना चाहते हैं कि कभी भी हम किसी भी मुसीबत में पड़ जाएं जाने अनजाने में, तो हमें भगवान के प्रति प्रार्थनाएं करना चाहिए हमेशा। भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि भगवान को सबसे प्रिय है भक्तों की प्रार्थनाएं, इसलिए भागवतम में अनेकानेक प्रार्थनाएं दी गई। और अच्छा है कि इन प्रार्थनाओं को याद करें और प्रतिदिन कोई ना कोई प्रार्थनाओं को पढ़ें, तो मुसीबत में जाएंगे ही नहीं। यदि प्रतिदिन हम प्रार्थनाएं पढ़ेंगे, कभी कुंती महारानी की प्रार्थना पढ़ ली, कभी गजेंद्र मोक्ष पढ़ लिया, कभी प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं पढ़ ली, कभी ध्रुव महाराज की, कभी वृत्रासुर की, तो इन प्रार्थनाओं को यदि हम पढ़ते रहेंगे तो हम कभी मुसीबत में फंसेंगे ही नहीं और भगवान हमें उभार लेंगे। तो माया विदुस्य चिच्छक्ता कैवल्य आत्मने, कैवल्य स्थित आत्मनि, भगवान हमेशा अपनी कैवल्य शक्ति में, अपनी चित्त शक्ति के अंतर्गत रहते हैं। भगवान की बहुत सारी शक्तियाँ हैं, संदिनी, संवित, संदिनी और आह्लादनी, बहुत सारी भगवान की शक्तियाँ हैं, चित्त शक्ति। तो भगवान हमेशा अपनी अंतरंगा शक्ति के वशीभूत रहते हैं। भगवान को कोई माया में फंसा नहीं सकता है। भगवान इस धराधाम में जरूर आते हैं। ये धराधाम कैसा है, जहाँ पे 3 प्रकार के गुण हैं, 3 प्रकार की रस्सियाँ हैं। 3 प्रकार की रस्सियाँ हम लोगों को हमेशा बांधी हुई है। जिस समय हम गर्भ में थे उस समय हम बंधे हुए नहीं थे। गर्भ में थे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, यहाँ से जल्दी निकालिए, हम आपकी भक्ति करेंगे। जब मनुष्य गर्भ में रहता है तो उसको पिछले 100 जन्म याद रहता है, पिछले 100 जन्म याद रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान रहता है, चित्त उसमें भी रहता है, ज्ञान रहता है। तो अपने 100 जन्मों को याद करता है और मिले हुए कष्टों को याद करता है कि कितनी बार हम गर्भ में आए, कितने प्रकार के कष्ट हुए, कितनी बार हमें किस जानवर ने खा लिया, कितनी बार हमें किसी ने मार दिया, कितनी बार हमें क्या 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 हुआ। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि इस गर्भ से बाहर निकालिए। यहाँ पे कीड़े काट रहे हैं, मल मूत्र में, ब्लड में लिपटा है शरीर, यहाँ मैं रह नहीं सकता हूँ, जल्दी निकालिए, बाहर निकल के आपकी भक्ति करूँगा। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है भूल जाता है। क्यों? गुणों के प्रभाव में आ जाता है। कौन कौन से गुण, कौन कौन सी रस्सियाँ उसको बांध लेती हैं। एक रस्सी जो है वो लोहे की है, एक रस्सी चांदी की है और एक रस्सी गोल्ड की है, लेकिन रस्सियाँ तीनों हैं। सत्वगुण को मान लीजिए कि सोने की रस्सी है सत्वगुण, लेकिन सत्वगुण भी बांधने वाला है, रजोगुण भी बांधने वाला है, तो डेफिनेटली बांधने वाला है, और तमोगुण उसका तो फिर बात ही नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली बांधेगा। तो सत्वगुण जो एयरपोर्ट में क्या कहते हैं उसको, रनवे के समान, रनवे के समान। तो खाली अब जाएं, एयरपोर्ट में बैठ जाएं और प्लेन बस रनवे में घूमता रहे, तो क्या मतलब, कोई मतलब है? अब बस वो प्लेन में बैठे, रनवे में थोड़ी देर घूमे और घर में वापस आ जाए, क्या मतलब? तो प्लेन में बैठे मतलब ऊपर उठे। तो अब आप सत्वगुण में आ गए, इसका मतलब शुद्ध सत्व में जाना है। ऊपर उड़ना मतलब शुद्ध सत्व में जाना है। तो भगवान की भक्ति हो सकती है शुद्ध सत्व में जाकर। जब शुद्ध सत्व में जाते हैं तो हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो माया विदस्य चित्त शक्तिया, लेकिन भगवान इस संसार में आके किसी भी बंधन में नहीं रहते हैं। ना भगवान सत्वगुण के वशीभूत रहते हैं और रजोगुण तमोगुण उनको तो दूर ही रहते हैं। भगवान सत्वगुण के भी वशीभूत नहीं रहते हैं। भगवान हमेशा अपने शुद्ध इटर्नल स्थिति में रहते हैं और वो केवल कृष्ण ही रहते हैं। और जीव को कभी कभी नित्यबद्ध कहा जाता है, जीव को, इसीलिए क्योंकि जीव कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है? अपरा शक्ति के अंतर्गत। नहीं, जीव जो है वो पराशक्ति के अंतर्गत है। कौन सी शक्ति के अंतर्गत? जीव भगवान की। ऐसे तो पराशक्ति के अंतर्गत है,
पराशक्ति, लेकिन कभी कभी नित्यबद्ध कह दिया जाता है क्योंकि माया में है, इसलिए नित्यबद्ध कह दिया जाता है। अपराशक्ति माया शक्ति है। तो जीव अपनी शुद्ध स्थिति में पराशक्ति के अंतर्गत आता है, क्योंकि जीव में वही गुण है जो गुण भगवान में है। भगवान में कौन कौन से गुण हैं? सच्चिदानंद। भगवान किसके बने? भगवान हड्डी के नहीं बने, भगवान ब्लड के नहीं बने, भगवान के शरीर में वो सब नहीं है जो हमारे शरीर में है। भगवान किसके बने? सच्चिदानंद। भगवान पूरी की पूरी आत्मा है। सुनिए कि भगवान का एक शरीर है, उसके अंदर एक आत्मा है। भगवान पूरी की पूरी आत्मा है। ये तो हमारा एक शरीर है, उसके अंदर एक आत्मा है ना। यदि भगवान ने कभी युद्ध स्थल में, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिखाया कि भगवान के शरीर से कोई ब्लड निकल रहा है, तो ये केवल जीवों को मोहित करने के लिए है। बाकी भगवान के शरीर में कोई ब्लड इत्यादि नहीं है ना, वो भगवान की एक लीला मात्र है। तो भगवान हमेशा कैवल्य में रहते हैं, हमेशा भगवान आनंद में रहते हैं और हमेशा भगवान ज्ञान में रहते हैं। तो भगवान अपने कैवल्य और ज्ञान के द्वारा माया को बहुत दूर रखते हैं। यद्यपि माया भी भगवान की शक्ति है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मीनां तनुते। तो भगवान कृपा करके जीवों को मुक्त करना चाहते हैं, है ना। स एव जीव लोकस्य माया मोहित चेतसा। सारा जीव माया के बंधन में है, सारा जगत माया के बंधन में है। और भगवान सबको मुक्त करना चाहते हैं, तो असीमित कृपा करते हैं भगवान को क्या ज़रूरत है आने की? हम लोग तो जाना चाहते हैं ना, हम लोग ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ जन्म ना हो, मृत्यु ना हो, व्याधि ना हो ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ ना हो, जहाँ पे भौतिक दैविक आध्यात्मिक ये सब दुख ना हो। हम वहाँ जाना चाहते हैं। भगवान वहीं रहते हैं, लेकिन भगवान यहाँ क्यों आते हैं? हम वहाँ जाना चाहते हैं, भगवान यहाँ आते हैं क्यों? क्योंकि भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं। भगवान के जैसी करुणा किसी में नहीं है। तो भगवान हमें मुक्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादि लक्षणम। और भगवान यहाँ पर आके स्थापना करते हैं धर्मादि लक्षणम की। धर्म के लक्षण क्या है? क्या धर्म के लक्षण जानते हैं? धर्म कहाँ निवास करता है? कौन कौन से पैर थे बैल के जिसको काट दिया कलयुग में? हाँ जी, तपस्या और हाँ, पवित्रता में सफाई आ गई, दया, सच्चाई, सत्य, पवित्रता, दया, हाँ, और ट्रूथफुलनेस। सत्य, पवित्रता, दया, ऑस्टेरिटी, तपस्या। ये चार धर्मादि लक्षणम, ये धर्म के लक्षण हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें कुछ निषेध दिए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें कुछ करने के लिए कहा। क्या करने के लिए कहा है? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। इसका अर्थ क्या है? जहाँ पर मीट ईटिंग होती है वहाँ पे दया नहीं है ना। जहाँ पे मारा जाता है अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, खाने के लिए, वहाँ पे दया नहीं है। दयाहीन लोग किसी दूसरे पशु को मारते हैं ना, पकड़ते हैं, बड़ी खुशी से जाते हैं और मछली पकड़ते हैं। तो मछली जब तड़पती है तो उनको खुशी होती है और वो फोटो खिंचाते हैं कि हमने इतनी बड़ी मछली, जितनी बड़ी मछली उसको उतना कष्ट हो, जितना बड़ा जीव उसको उतना कष्ट होता है, और उसके साथ फोटो खिंचाते हैं और शेयर करते हैं और दूसरे लोग कहते हैं वाह 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 वाह। बताइए, नो गैम्बलिंग, प्रभुपाद जी ने कहा। जहाँ पे गैम्बलिंग है वहाँ पे सत्यता नहीं है। जो लोग गैम्बलिंग करते हैं वो झूठ है वहाँ पे। और इसके बाद नो इंटॉक्सिकेशन। तो जहाँ पे इंटॉक्सिकेशन है वहाँ पर क्या नहीं है?
तपस्या नहीं, है ना। हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि गांजा पी के कोई तपस्या करेगा। जो गांजा पी के जो तपस्या करने का जो नाटक करते हैं वो केवल नाटक है। वो तो अपने नशे में घूम रहे हैं, वो क्या तपस्या करेंगे, वो तो नशे में है, वो कहाँ किसी का ध्यान करेंगे। और नशे में तो और ज़्यादा भौतिक चीज़ों का ध्यान होता है, और लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन का ध्यान करते हैं। और अंत में क्या है, और वहाँ पे क्या नहीं रहता है, पवित्रता नहीं रहती। तो अगर इन चारों खंभों को धर्म के फिर से इसकी स्थापना करनी है, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि सत्य बोलिए, है ना। प्रभुपाद जी ने कहा कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। तो यदि ये चारों चीज़ें हैं तो धर्म के खंभे फिर से स्थापित हो जाएंगे। इसीलिए जो इस्कॉन है, जिसकी स्थापना प्रभुपाद जी ने की है, ये ब्राह्मण बनाने की फैक्ट्री है। इधर कैसा भी मटेरियल डालिए, कितना भी गंदा, कितना भी खराब, कुछ भी डालिए, ब्राह्मण बन के निकलेगा। थोड़े दिनों के बाद आएंगे झूमते झूमते, और थोड़े दिनों के बाद मंदिर में आरती करेंगे। कैसा भी मटेरियल डालिए आप, कितना भी खराब मटेरियल डालिए, वो ब्राह्मण बन के ही निकलेगा, है ना। ये चमत्कार श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। संसार में कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। तो ये चमत्कार यदि किसी ने किया है तो केवल प्रभुपाद जी ने किया है। तो लेकिन अगर माया से बचना है तो हमें भगवान के प्रति सरेंडर करना पड़ेगा। जब हम भगवान को सरेंडर करते हैं तभी हम, अन्यथा माया हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान की माया बहुत दुरत्यय है, बहुत दुरत्यय, कोई नहीं बच सकता। एक ही तरीका है, केवल एक ही तरीका उससे बचने का, माया से बचने का। मामे विहे प्रपद्यन्ते। जितनी देर के लिए हम मंदिर में रहते हैं हमारा हृदय शांत है, माला के साथ में रहते बढ़िया रहते। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो माया अपना काम करना शुरू करती है। तो एक ही तरीका है, मामे विहे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माया से तर सकते हैं। तो एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये माया कार्य करती है। एक व्यक्ति था, ब्राह्मण लड़का था, वो पाकिस्तान चला गया, और पाकिस्तान गया तो उसको एक मुस्लिम लड़की से प्रेम हो गया, और मुस्लिम लड़की को भी उससे प्रेम हो गया। तो अब वहाँ तो मुस्लिम लड़की ने कहा उससे, यहाँ किसी को पता चलेगा तो बस फतवा जारी हो जाएगा तुम्हारे नाम का, मार देंगे तुमको सीधे, है ना। तो क्या करें, तो यहाँ से निकल चलते हैं, चलो इंडिया भाग चलते हैं तुम्हारे साथ। तो वो लोग इंडिया भाग गए, भागने लगे। तो जंगल के रास्ते से जा रहे थे, और भागते भागते रात्रि हो गई। तो जिस रास्ते से, जिस जंगल से आ रहे थे, उस जंगल में बहुत सारे अजगर रहते हैं, बहुत बड़े बड़े एनाकोंडा रहते हैं, बहुत बड़े बड़े अजगर रहते हैं। तो वहाँ से आ रहे थे, तो रात्रि हो गई, बहुत थके हुए थे। तो क्या करें, कभी भी नींद आ सकती है, इतने थके हैं, और ये तो जंगल भरा पड़ा है, अजगर से बहुत दूर तक। तो रात्रि में विश्राम करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो यदि इन जंगली जानवरों से बचना है तो उसका एक ही उपाय है कि आग जला के रखना पड़ेगा। तो उन लोगों ने आग जलाई, आग जल गई बढ़िया से, और वो लोग थोड़ा विश्राम करने लगे। तो इतने थके थे कि वो सो गए, और धीरे धीरे आग जो है वो बंद हो गई। तो आग बंद हो गई तो एक अजगर आया, और उस अजगर ने लड़की के पैर पकड़ लिए। तो जानते हैं अजगर कैसे निकलता है, धीरे धीरे, ऐसे पता ही नहीं चलता है, बहुत सॉफ्टली, ऐसे ऐसे करके वो निकलता है, धीरे 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 ऐसे। तो पकड़ लिए पैर, और वो निकलने लगा। जब यहाँ तक पकड़ लिया तब उसकी नींद खुली। लड़की थी, बहुत थके थे, तो यहाँ तक पकड़ लिया तो नींद खुली। तो अजगर था वो, तो चिल्लाने लगी जोर जोर से। उठाया उसको, तो उसको उठाया तो वो ढूंढने लगा कहीं लकड़ी को, कि लकड़ी मिले और मारे उसको। तो वो चिल्ला रही थी कि आग जलाओ आग, लेकिन वो इतना डरा हुआ था, उसने आग जलाने की थोड़ी कोशिश करी, लेकिन आग जली नहीं। तो बहुत बड़ा लेके आया डंडा और मारने लगा, लेकिन अजगर जो है वो धीरे धीरे यहाँ तक निकल गया।
कह रही है कि आग जलाओ आग, लेकिन तब तक यहाँ तक। और इसके बाद लड़का डर गया और वो भाग गया। यहाँ तक निकले ही है तो क्या करें। तो मम माया दुरत्तया, अजगर के समान माया जो है निकलती है। अगर इससे बचना है तो एक ही उपाय है, वो क्या, आग जलानी पड़ेगी। ये केवल जंगली जानवर जो हैं ये आग से डरते हैं और किसी चीज़ से नहीं डरते। तो उसी प्रकार से यदि हमें माया से बचना है तो हमें भगवान के चरण कमलों में सरेंडर करना पड़ेगा, तभी माया से बच सकते हैं, है ना। तो कैसा श्लोक है, कौन सा श्लोक सुना आपने, श्लोक याद है? दैवी हेषा गुणमयी, ये भी भगवान की माया है, भगवान की शक्ति है, दैवी शक्ति है भगवान की। मम माया दुरत्या, लेकिन ये दैवी शक्ति बहुत दुरत्य है, इस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, इसको जीता नहीं जा सकता है। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे चरण कमलों में जो लोग अपना जीवन समर्पित कर देते हैं वही माया में काम कर देते हैं। कुछ लोग सरेंडर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कौन करते हैं? 4 लोग करते हैं, आर्थो अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। कौन नहीं करते हैं? ना माम द्रष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया या पृथग्ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता, ये लोग नहीं करते हैं। तो भगवान बहुत दयालु हैं। हमारी इच्छा हुई इस मटेरियल वर्ल्ड में आने की। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान ने हमें क्यों भेजा यहाँ पे, इतना कष्ट है। भगवान को ब्लेम करते हैं सीधे ना, सीधे भगवान को ब्लेम करके भगवान ने क्यों भेजा। तो भगवान ने नहीं भेजा, हमारी इच्छा हुई एंजॉय करने की, भगवान ने छोड़ दिया। अब देखिए, कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो वो उससे ज़बरदस्ती नहीं करेगा, यू हैव टू मैरी, ज़बरदस्ती नहीं करेगा, कान पकड़ के मार के पीट के नहीं यू हैव टू मैरी, आई लव यू, कभी नहीं करेगा। वो जानेगा कि ये चलो किसी और से प्यार करते हैं तो चलो भाई तुम्हारी जिसमें खुशी हम छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। तो भगवान ने जब देखा कि ये जीव मटेरियल जगत को भोगना चाहता है, मुझे छोड़ के तुम जाओ आनंद ले लो थोड़ा, ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, जब समझ में आएगा तो वापस आओगे, जब लर्न करोगे तो वापस आओगे। तो क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं हमसे, इसलिए प्रेम में बाध्यता नहीं होती है, प्रेम में कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है। तो उसी प्रकार से क्योंकि कृष्ण प्रेम करते हैं इसलिए हम इस जगत में हम आए। तो जीव ऐसी जगह था, 2 रास्ते थे, एक भगवान को ग्रहण कर सकता था, भगवान के चरण कमलों में सरेंडर कर सकता था, और इस जगत में भगवान बन के रह सकते। तो उसने सोचा कि हम खुद भगवान बनेंगे, हम खुद चीज़ों को इंजॉय करेंगे। इंजॉयर बनना चाहता था, भोक्ता बनना चाहता था, इसलिए हम सब यहाँ आके फंस गए। लेकिन भगवान ने हमें छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं भगवान ने छोड़ दिया, जाने दो, हमें छोड़ दिया, जाने लीव इट, ये हम लोगों का काम है। भगवान ने नहीं छोड़ा, भगवान तुरंत टॉर्च लाइट देते हुए आ गए। अंधकार है तो भगवान टॉर्च लाइट दिखाते हुए परमात्मा के रूप में हृदय में आ गए। भगवान हृदय में बैठे हैं, परमात्मा के रूप में टॉर्च लाइट दिखा रहे हैं कि फिर मेरे पास वापस आ जाओ, फिर आ जाओ वापस। तो जब भी हम कोशिश करते हैं, मन में थोड़ा सा सोचते हैं कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, तो भगवान तुरंत हमें बुद्धि दे देते हैं जो हमारे हृदय में बैठे हैं। ददामि बुद्धि योगम तो ये मामू पयांति, केवल सोचना है कि हम कुछ कर लें, है ना। कभी कभी अब सोचते हैं बहुत काम है, जन्माष्टमी के दिन छुट्टी नहीं है, क्या करें। लेकिन अगर आपकी तीव्र इच्छा है मंदिर आने की, तो भगवान को जैसी व्यवस्था करते हैं कि आप आ जाते हैं, है ना। माता जी बता रहे थे कि माता जी बहुत बिजी रहते हैं अमेरिका में, तो लेकिन माता जी कथा सुनने के लिए आना चाहते थे यहाँ पे। तो कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि उन लोगों ने बोला कि आप जाइए, और अगर आपको एक्सटेंड करना हो छुट्टी तो आप बता देना केवल एक बार बोल देना। तो यदि हम कुछ डिज़ायर करते हैं कुछ भगवान के प्रति समर्पण करने की, भगवान के प्रति सेवा करने की, तो भगवान कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यवस्था कर देते हैं और रास्ता बना देते हैं हमारे लिए कृष्ण के पास आने के लिए, अपने पास आने के लिए। तो ये भगवान की करुणा है,
भगवान बहुत बड़ा ट्रबल लेते हैं, इस संसार में आते हैं हमारे लिए, गर्भ में आते हैं। बताइए गर्भ कितनी बुरी जगह है, लेकिन फिर भी भगवान गर्भ में आते हैं। देवकी के गर्भ में आए, यशोदा के गर्भ में आए, भगवान दोनों के गर्भ से जन्म लिए, कृष्ण दोनों के पुत्र हैं। तो भगवान आए इस संसार में, लेकिन ये मत सोचिए कि भगवान हमारे जैसे गर्भ में रहते हैं, क्योंकि जब भगवान गर्भ में आते हैं तो गर्भ धाम बन जाता है। क्योंकि भगवान से क्या निकलता है? सच्चिदानंद निकलता है। तो जहाँ भगवान है, क्यों हमें मंदिर में अच्छा लगता है? क्या कारण है कि मंदिर में आते ही हम सारे दुखों को भूल जाते हैं? मंदिर के अंदर प्रवेश किए और तुरंत हमें आनंद की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है हमारे हृदय में। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान निवास करते हैं, यहाँ भगवान रहते हैं। जहाँ भगवान है वहाँ आनंद है। भगवान जब गर्भ में आए, तो गर्भ में आए, चाहे कौशल्या के गर्भ में आए, चाहे अदिति के गर्भ में आए, चाहे भगवान किसी के भी गर्भ में आए, तो वो गर्भ भगवान का धाम बन जाता है। वहाँ पे हर प्रकार से सुख रहता है भगवान के लिए। और भगवान आते हैं, भगवान लीलाएं करते हैं हमारे लिए, कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे कि हमें उनको पढ़ के, उनको सुन के और अपने मन में उनका चिंतन करके हम मुक्त होने लगते हैं। तो जैसे ही हम भगवत कथा सुनना प्रारंभ करते हैं, यस्या वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, सबसे अच्छा उपाय भगवान को अपने हृदय में बसाने का है भगवान की कथा, सबसे बढ़िया उपाय है ना। यदि मंदिर ना भी आ पाए तो घर में कृष्णा बुक ले लीजिए, खोल लीजिए, श्रीमद् भागवतम खोल लीजिए, पढ़ लीजिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। प्रभुपाद जी डिक्टाफोन में बोलते थे और भक्तों ने उसको लिपिबद्ध कर दिया। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी कथा कर रहे हैं। शुद्ध भक्त के मुख से जब हम ये कथा सुनते हैं, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब क्या होगा? भक्तिर उत्पद्यते पुंसा, समय नहीं लगेगा, तुरंत हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाए। और दूसरी चीज़ों को सुनने के बाद कुछ करना पड़ता है, लेकिन भगवान की ये कथा ऐसी है कि जैसे ही सुनना प्रारंभ किया, उसी समय भक्तिर उत्पद्यते पुंसा और शोक मोह भयापहा। ठीक है, हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत अमल पुराण की, श्री प्रभुपाद की, श्री राधा गोलोक बिहारी जी की।